टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो स्वागत और है। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक पैलेस में, लेकिन वो कौन सा पैलेस है बताएंगे मौजम। टाइटल है आई एक्सपीरियंस रॉयलिटी एट 100 year old गोंदल पैलेसेस इन गुजरात, आई लव माई इंडिया एपिसोड 22। भाई ये कैसे मुमकिन है मौसम ना नहीं, चलो कोई बात नहीं, अभी तो इसने फिर भी बेहतर पढ़ लिया है, लेकिन ये कि मैं यहाँ पर बताती चलूंगी गोंदल यहाँ पर कास्ट भी है और आज हम लोगों को मुझे लग रहा है कि पता चलेगा गोंदल लोगों का मतलब बेसिकली कहाँ से है, उनका ओरिजिन कहाँ से है। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमें लोग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। I am at one of the best and oldest palaces of Gujarat है ना? to get a बिल्कुल भी whiff princess of the लग रही हैं royal आज। life. Welcome to Heritage Gondal Palaces. गुजरात में है, कलर मतलब काफी सारे पैलेस हैं, एक नहीं है। राजकोट एयरपोर्ट से 1 घंटा दूर गोंडल इज अ क्विंट लिटिल टाउन ऑफ गुजरात। ज्यादातर गुजरात आने वाले टूरिस्ट को शायद इस जगह के बारे में ज्यादा पता ना होगा, बट वंस दे सेट फुट इन दिस चार्मिंग टाउन, उन्हें गोंडाल के पैलेसेस से प्यार हो जाएगा। हम यहाँ पे आते Founded थे, in गोंदल हो गया। 1634 by Jadeja Rajput, Gondal princely state was modernized by His Highness Maharaja Sir Bhagwant Singh Ji from 1880s to 1940s. ये गोंडल के सबसे loved and respected महाराजा हैं। इनके राज में इन्होंने अपनी प्रोग्रेसिव थिंकिंग की वजह से कई सारे डेवलपमेंट्स लाए थे, बी इट टैक्स रिफॉर्म्स और कंपल्सरी एजुकेशन फॉर वुमेन। The royal family who still live in this town have three major and magnificent palaces in Gondal. The Orchard Palace, the Riverside Palace and the Naulakha Palace. Oh my God. अब Orchard Palace और Riverside Palace तो convert हो चुके हैं into heritage hotels, whereas the Naulakha Palace has been converted into a museum. मैं रह रही हूँ at Orchard Palace जो built हुआ था in the 19th century. This was built actually to host the special guest of Maharaja. And guess who's the special guest this time around? Well, so the Orchard Palace has only 7 rooms to offer. काफी spread out है. It literally feels like you are living in someone's home. Of course, it is a palace, and all the rooms here are well appointed by 1930s, 40 Art Deco. It's got handicrafts. It's got antique furniture. Each room, in fact, has a different structure, different kind of a furniture. Let me show you a very special room जो महाराजा ने अपने special guest के लिए रखा था. बेड छोटा था ना, मुझे लग रहा है बेड का साइज। The property gets its name from the lime, chiku and mango groves it faces to the rear. More than 80 peacocks and peahens inhabit the gardens, and a variety of other birds can be watched while walking around the grounds. होगी ना। Well, one of the most interesting parts of the palace is the rail salon of the royal family. You know, the interesting bit is कि महाराजा को travel का शौक था हमारी तरह, but wherever he would travel, he would attach his private rail carriage to the train journey that he wanted to join. Now I'm quite intrigued to know कि ऐसी क्या खास बात है इस rail carriage की. Let's go and find out. Oh my God, this is so cute. Wow, so this is the rail saloon. You know, it actually comes with a cute drawing room. It's got a dining room. It also has a very cozy bedroom. It's got bathrooms. It's got English vintage style furniture. I think, you know, few experiences money can't buy, and this is definitely one of them. Well, the royalty doesn't end here, as the royal family of Gondal has one of the largest collections of vintage cars. They have over 38 vintage, gorgeous looking cars, even from the pre-1910 era. Come, let me show you around.
The Royal Vintage and Classic Car collection includes family's excellent collection of cars from a pre-1910 new engine to the European vintage cars, American cars, or even sports cars. Well, the royal family has been big time into racing, and no wonder then they have a great collection of sports cars too. संभाल के रखी है। You can spend a night in the Orchard Palace for just 5,775 rupees plus taxes for two. ले जाना है प्लीज। वाओ। A stay at a royal palace definitely deserves a royal meal as well. तो मेरे सामने है एक authentic गुजराती थाली, a royal थाली so to say. It's got तिल्ली वाले आलू, crunchy भिंडी, रजवाड़ी ढोकली, दाल एंड गाजर का हलवा along with बाजरे की रोटी and आटे की रोटी. Can't wait to dig in. Hey, by the way, there's also a bowl full of ghee and good. And I think without these two elements, a Gujarati thali is often incomplete. Well, that was quite a tour of the Orchard Palace, but now it's time to explore the Riverside Palace, which is just about a kilometer away from here. मौसम कितना अच्छा था ना। Yeah, so this is the Riverside Colour बहुत Palace, which is अच्छा। a European-style mansion built in the year 1885. महाराजा ने ये अपने प्रिंस और प्रिंसेसेस के लिए बनाया था. From the looks of it, well, I totally love the color of this palace. Now that's a pretty dining room and lots of animals staring at the dining table. So guys, what you see here are not sculptures or carvings. They are real animals preserved using a very specific technique, and all these animals were hunted by the royal family a long time ago, and they've now been installed on the walls of this palace. हमें रात को आएंगे। रिवरसाइड पैलेस एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैलेस है नियर द टाउन्स रिवर. यहाँ हर गैलरी में आपको हिस्टोरिक फोटोग्राफ्स, प्रिंट्स एंड एंटीक बीड वर्क देखने को मिलेंगे. Well, so the Riverside Palace has about 11 rooms, all of them extremely spacious, high ceilings, and they all come with elegant colonial furniture. And not just that, rooftop पर glass walls है, which lets the sun shine into the gallery, and it looks really beautiful. बारिश के मौसम में बहुत मजा आया. देखो शॉट एकदम मजे का है। So this is the Nau Lakha Palace, जो built हुआ था in 15th century. बाकी तो palaces से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है इसके बारे में. इसे नौ लखा एक बहुत ही खास रीजन से बुलाया जाता है. कई साल पहले, अप्रोक्सीमेटली 450 years ago, जब ये built हुआ था, इसे बनने में लगे थे 9 लाख रुपए. And that's why it's called Nau Lakha Palace. Wow, this is so gorgeous. ये गोंडाल का सबसे पुराना पैलेस है. इनफैक्ट कई साल पहले द रॉयल फैमिली ऑफ गोंडाल यूज्ड टू लिव हियर. महाराजा भगवत सिंह जी के टाइम पर दिस गॉट कन्वर्टेड इनटू एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एंड द फैमिली शिफ्टेड टू हुजूर पैलेस, जहां वो अब भी रहते हैं. एंड द नौ लखा पैलेस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ म्यूजियम.
So this is really cute. This is the Maharaja's room when he was a kid. काफ़ी क्यूट सी नर्सरी है यहाँ पर and it really baffles me as to how they have managed to restore and preserve every little thing in this room and in fact in this palace. यहाँ के प्राइवेट Meeting म्यूजियम वगैरह। में टेक्सटाइल्स, ब्रासवेयर, रॉयल वार्डरोब सब है and even a weighing scale on which Maharaja was once measured by locals against gold on his golden jubilee as a tribute to him. बांट दिया जाता था। वैसे I have to पालकियाँ। say रॉयल फैमिली काफ़ी शौकीन है। We already saw their collection of vintage cars and here I can see a huge collection of horse carriages which are more than 100 years old. ऊपर डेट भी लिखी हुई है। So many interesting stories. वैसे anyone can come to नौलखा पैलेस। यहाँ आने की टिकट है 320 रुपए, बट अगर आप रह रहे हैं at Orchard Palace or Riverside Palace like me, you get free access to the entire museum and a visit around the Nolakha Palace. मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था that Gujarat has so much grandeur and royalty to offer. I'm sure you too are tempted to plan your next trip to the palaces of Gondal to experience the same royalty as I did. पर मेरा सफर गुजरात में यहाँ खत्म नहीं होता because I am heading next to Surendranagar to find out what that pretty city has to offer. So stay with me as we travel around Gujarat. Until then, it's me Kamya Jani signing off. अच्छा, ये वाला एरिया नजर भी आता है आपको ब्रिटिश टाइम के स्ट्रक्चर। भाई आज से पहले जो है हमें बिल्कुल नहीं था पता गोंदल जो है वो गुजरात का एक टाउन है। हम तो कास्ट ही समझते रहे, लेकिन शायद मुझे लगता है कि जो गोंदल है वो वहीं से ही आए होंगे। वेल मैं ये कहूंगी कि गोंदल लोगों को भी नहीं पता होगा कि गुंडाल जो है वो ओरिजिनली मतलब उनका जो नाम जिस तरीके से भट्ट जो थे वो भाट थे, तो उस तरह से उनकी कास्ट का एक नाम था। यहाँ तक आते आते किस तरीके से वो गोंदल Change बन हो गया, गए। बिल्कुल। तो अगर मुझे कोई गोंदल साहब मिले या गोंदल साहिबा मिली तो मैं डेफिनेटली उनको जरूर बताऊंगी कि भाई आपके पीछे से पूर्वज कहाँ से थे। बट कमाल के पैलेसेस, बहुत खूबसूरत। मैं कहती हूँ कि इन्हीं चीजों को देखकर दुनिया बोलती है इनक्रेडिबल इंडिया। सही बात है। कि जिस तरीके से जो चीजें हैं, मैं कहती हूँ कि जितनी भी हम लोगों ने जो पैलेसेस देखे हैं, इम्पोर्टेंट ये नहीं कि पैलेसेस जो हैं वो बने हुए हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि वो अभी तक अपनी असली हालत में और इतनी खूबसूरती के साथ रखे गए हैं। तो अगर मैं बात करूं तीनों पैलेसेस की वन बाय वन, तो जो ऑर्चर्ड पैलेस है या रिवरसाइड पैलेस है या फिर नौलखा पैलेस है, अपनी जगह पर सब खूबसूरत है बहुत ज्यादा। बट मेरे नजदीक नौलखा पैलेस मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगा क्योंकि उसके ऊपर जो कारीगरी की गई है वो कमाल की, और मेरा हाल में जो सबसे वो पुराना भी है और उसके बावजूद उसकी जो मेंटेनेंस का ख्याल रखा गया, चाहे उसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया, लेकिन मैं कहूंगी कि वो बहुत बेहद खूबसूरत है। शायद मुझे पर्सनली मेरी मतलब चॉइस भी इस तरह की है, तो इस वजह से मुझे ज्यादा पसंद मैं अगर कलर के हिसाब से बात करूँ ना तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया रिवर साइड वाला जो है ना, वो मुझे बहुत, इनका जो एक कलर किया हुआ ना ब्लू कलर का, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। लेकिन आर्किटेक्चर है ना, हाँ, वो भी आपको कॉलोनियल टाइम को मतलब एक वो रिप्रेजेंट करता है। लेकिन नौलखा पैलेस की बात करें ना, वो इस तरह का कि वो कई चीजें होती है ना, चलते चलते रास्ते में आप अट्रैक्ट हो जाते हैं उस चीज से। वो नौलखा जो है वो कुछ इस तरह का जो बना हुआ है। मैं अगर नौलखा के उसके मुझे जो है ना इस तरह के जो पैलेसेस होते हैं ना, उनकी एक चीज बहुत पसंद आती है कि उस पे जो है ना किसी तरह का पेंट नहीं किया जाता। उसका जो एक नेचुरल, जो नेचुरल कलर उसका जो एक होता है ना, वो आपको बहुत ज्यादा जो है ना वो अपनी तरफ आकर्षित करता है। जैसे कि अगर इसमें बात करें तो अभी जो हमने पैलेस देखा, हालांकि ब्राउनिश टाइप कुछ कलर था, लेकिन जो है वो उसमें से एक ब्लैक कलर जो था वो भी बीच में आ रहा था, टच आ रहा था। हाँ, तो ये चीज आपको बहुत अच्छी लगती है। वेल, और इसके अलावा मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि भाई आपको मतलब ये मौका मिलता है कि आप वहां पर रह सकते हैं, और 5,000 700 कुछ रुपए, 6,000 भी लगा लो पूरा, तो भी मैं कहती हूँ कि भाई बहुत अच्छी जगह है, जाकर जरूर विजिट करना चाहिए।
और सीरियसली मुझे लगता है कि फैमिली के साथ तो बंदे को बहुत मजा आया ना। अगर आप जैसे हाँ। आप वो बता रही थी कि आई थिंक ऑर्चर्ड वाले में 5 रूम्स थे ना, हाँ। तो बाद वाले में तो 7 रूम्स थे, तो 5 रूम्स हमारी फैमिली के लिए इनफ होंगे, मजा मुझे लगता है हम अच्छे से प्लान कर सकते हैं। हम 2 रूम में भी एडजस्ट हो सकते हैं, टेंशन ना लें आप उसकी। नहीं यार, मतलब फिर भी एक पूरी रॉयल फैमिली की तरह आपको फील आनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, रॉयल फैमिलीज के जो फर्नीचर होते हैं वो बड़े खूबसूरत होते हैं, मुझे उनके बेड्स और स्पेशली अगर जैसे ड्रेसिंग टेबल्स होते हैं या फिर ऐसे वुडन पीसेस पड़े होते हैं, छोटे छोटे बल्स जो बॉक्स टाइप के बने होते हैं, मुझे बड़े खूबसूरत लगते हैं क्योंकि उनके ऊपर भी जो कारीगरी की गई होती है वो बड़ी प्यारी लगती है। और मुझे पुराने जैसे सिंगल बेड है, मुझे वो बहुत पसंद है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी एक अलग ही खूबसूरती थी। आजकल के जो मॉडर्न टाइम में भी घर बनते हैं ना, मुझे लगता है कि उसमें इतना ज्यादा वो उसको लशपश कर दिया जाता है ना कि आपको लगता है टाइलें लगा कि ये घर है, लेकिन वो टाइम के घर वाकई में लगता था कि घर है। हालांकि वहां पर भी चीजें बहुत ज्यादा एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखी जाती थी, और उसके साथ साथ ये चीज भी मुझे बड़ी अच्छी लगती है रॉयल फैमिली की कि वो अपनी हर चीजों का एक रिकॉर्ड रखते हैं और उनको बड़े अच्छे से मेंटेन करते हैं, तो ये चीजें बहुत अच्छी यार। पुराने घरों की मैं बात करूँ ना, तो उनमें जो फर्श बनाया जाता था ना, वो इस तरह का बनाया जाता था कि वो आपको जो है ना उस जमाने के हिसाब से एक टच देता था, एक फीलिंग देती थी। भी आप देखें ना, किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जो बहुत पुराना बना हो, उस घर का जो फर्श होगा ना, वो एक तो ठंडा भी होगा और दूसरा उस टाइम की आपको फीलिंग भी देगा। लेकिन आज के घरों की बात करें ना, तो आज के घरों में जो है आपको एक लशपश देखने को मिलता है भाई। जो पुराने फर्श थे जो चिप्स डाल के बनाए जाते थे, उसकी जगह चिप्स पड़ी हुई हाँ है, मार्बल भी लगा हुआ है, वो उसकी जगह जो है ना मार्बल ने ले ली हुई है या टाइल्स ने ले ली हुई है या जो फ्लोरिंग आती है डिफरेंट टाइप की, उन्होंने ले ली हुई है। लेकिन जो है जो एक आपको वो कहते हैं ना मजा, एक सुकून जो पुरानी चीजों में मिलता है, वो आज के वो उसमें नहीं है। फिर उसके बाद बाकी रॉयल फैमिली की मैं बात करूँ तो भाई उन्होंने जिस तरह अपनी चीजों को एक संभाल के रखा है, जैसे मैं गाड़ियों के कलेक्शन की बात करूं, भाई ऐसी ऐसी गाड़ियां जो है ना आपको सिर्फ वो उन मूवीज में देखने को मिलती हैं जो पुराने जमाने के हिसाब से बन रही हों। उनमें भी पता नहीं क्या कुछ करके वो गाड़ियां यूज भी की जाती हो जब किसी मूवी की शूटिंग वगैरह हो ना, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं, पीरियोडिक मूवी बन रही हो हाँ तो। में भी हो सकता है। लेकिन जो है ऐसी गाड़ियां आपको उन मूवीज में उस टाइम के हिसाब से देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद बग्गीज की बात करें, ठीक है, वो भी देखे तो कलेक्शन उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है बग्गीज देखने को मिली विद टाइम। उन्होंने हाँ वो वही ना टाइम पीरियड उन्होंने मेंशन किया है कि किस जमाने में जो है इस्तेमाल होती रही, फिर उसे प्रिजर्व जिस तरह किया गया वो बहुत एक अच्छी चीज है। फिर उसके बाद बच्चों का जो रूम है, बच्चों की जो चीजें हैं जिसमें जो है महाराजा जी जो है बैठते थे वो तकड़ी में कि उनके बराबर जो है वो दान दिया जाता था। हाँ, तो अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा चीजें जो है प्रिजर्व करके बहुत अच्छे तरीके से रखी गई हैं। और भाई मैं तो मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी कि अभी आज के टाइम में आपको मतलब उस मतलब जो टाइम की एक फील एक वाइब वो ले सकते हैं, आपके पास अब इतनी अपॉर्चुनिटी होगी। पर एक चीज मुझे बड़ी पसंद है कि पुराने टाइम के जो घर थे ना, चाहे वो हम लोग महल देख लें या हम लोग आम लोगों के घर देख लें, मैं यहाँ पर भी देखती हूँ जब वॉल्ड सिटी में जाते हैं तो उन लोगों की एक चीज बड़ी अच्छी होती थी कि वो घर की छतें बड़ी ऊंची रखते थे और रोशनदान रखते थे, जिससे जो घर में जो वेंटिलेशन का बड़ा एक अच्छा सिस्टम हो जाता था, हवादार घर होते थे। अभी मैं देखती हूँ घरों की छतें काफी ना मतलब उनका जो क्या 10 फुट की हो गई है, 11 फुट की हो गई, हाँ, यार इतनी लंबी नहीं होती। एक और चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है पुराने घरों की, अभी भी आप जब जाते हैं ना अंदरून लाहौर में, तो वहाँ पे जो पुराने घर हैं अपनी छतों पे उन्होंने बैठने के लिए जगह भी बनाई होती थी। हमारे तो अब ये ट्रेंड खत्म ही हो चुका है ना, छतों पे बैठने के लिए जगह बनाना। थड़े से बनाए होते थे? थड़े से नहीं, यानी कि जो दीवार होती थी ना, दीवार पे ही इस तरह का उन्होंने वो बनाया होता था कि आप बैठ सकते थे उस पे। आप अगर आप मेरे साथ कभी आप जाएंगे ना शालमी वाली साइड पे, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा जिस तरह उन्होंने वो बनाए होते हैं। तो वो चीज भी जो है मुझे बहुत ज्यादा जो है अट्रैक्ट करती है। और लिटरली पुराने घरों में जब आप एंटर होते हैं ना, तो आपको उस टाइम के लोगों की ना एक वाइब आती है, एक फील आती है कि भाई उस टाइम के लोग किस तरह जो है यहाँ पर रहते होंगे। आप जब अंदरून लाहौर की गलियों में जाते हैं, घूमते हैं, तो आपको सेम रश और की मैं बात नहीं कर रहा, मैं छुट्टी वाले दिनों की बात कर रहा हूँ, जब आप सुकून से घूम सकते हैं तो आपको एक वहाँ की वाइब आती है। और एक और बड़ी अच्छी चीज मुझे लगती है पुराने घरों की, और वो ये कि ना उनकी जो बुनियाद थी ना वो बड़ी ऐसे चौड़ी रखी जाती थी, और इवन के जो खिड़कियां वगैरह भी मैं देखती हूँ
इतनी इतनी चौड़ी वो खिड़कियां होती थी। हम लोग तो आजकल जगह की हम लोग को इतनी प्रॉब्लम होती है कि 4 इंच की दीवार होती है हमारी। हाँ एग्जैक्टली, वही तो कह रही है कि छोटी छोटी हम लोग दीवारें बना लेते हैं, लेकिन उनकी जो जगह वो कम से कम बहुत ऐसे चौड़ी चौड़ी बनाते थे। पुराने घरों की मैं बात करूँ तो कम से कम उसकी जो दीवार थी वो 16 इंच की उसकी दीवार होती थी, और वो दीवारों में ही उन्होंने जो है वो अपनी अलमारियां बनाई होती हाँ, थी। बिल्कुल ऐसा होता है। बट ये है कि भाई आज का एक्सपीरियंस कमाल का था, बहुत मजा आया। सेकंड वाले रिवर साइड वाले पर भी आ जाए मौसम थोड़ा हाँ, सा। हाँ, बिल्कुल आ जाए। रिवर साइड वाले को तो हम लोग ने इतना डिस्कस ही नहीं किया, बट रिवर साइड वाले का मैं कहूंगी कि वो एक कॉलोनियल टाइम को आपको रिप्रेजेंट करता है, और वो भी बहुत खूबसूरत है अपनी जगह पर। बाकी और भी हम लोगों को थोड़ी सी बिल्डिंग ऐसे नजर आई जो कि ब्रिटिश टाइम की आपको लग रही थी, लेकिन ये है कि हर एक की मुझे लगता है कि अपनी अपनी एक खूबसूरती है, क्योंकि वो अपनी अपनी तर्ज पे बना हुआ है, तो हर किसी की एक अपनी वो कहते हैं शान है, एक शौकत है। बट मैं मौसम से पूछना चाहूंगी, मौसम किस में रहना चाहेगा? भाई वैसे पसंद तो मुझे 2 है, हाँ। ठीक है ना, लेकिन जो है नौलखा में रहना चाहोगे, बट नौलखा में तो म्यूजियम है, लेकिन आपने रहने का पूछा अपने तीनों से, लेकिन चांस मिले। वो सीढ़ियां बड़ी खूबसूरत लगी हैं जो बाहर से ना ऐसे, वो पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी सी ऐसे शाही किले में जाओ ना तो आपको वो सीढ़ियां मतलब उसकी याद आ जाती है, इतनी सारी वहां पे भी बिल्कुल एक है जो इतनी चौड़ी चौड़ी सीढ़ियां हैं, बिल्कुल है एग्जैक्टली, तो बड़ी अच्छी लगती हैं। एनीवे गाइस, ओवरऑल काफी खूबसूरत एक वीडियो थी, बहुत मजा आया देखने का, एंड आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। आप में से कौन कौन इस जगह पे विजिट कर चुका हुआ है, और अगर नहीं कर चुका तो कौन सी जगह पर आप रहना पसंद करेंगे, तीनों में से आपको सबसे ज्यादा अच्छे कौन से लगे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसी साथ में इजाजत, हमारी वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड गुड बाय।